Good morning to all. Welcome in the science class. Student, we have already started our lesson reproduction in plant. In this lesson, in previous video, we learn about what is the reproduction. And there are two main methods of reproduction in plants, sexual or asexual. In sexual, the male and female gametes fuse to form seed and that eventually develop into new plants. And in the asexual method, only vegetative parts use होते हैं and means stem, bud, leaf, roots. And vegetative propagation, there budding, fragmentation and spore formation. This is asexual reproduction in the plant. And we have also discussed about the budding, fragmentation, spore formation and vegetative reproduction. In this vegetative reproduction, there are two types of method, natural and artificial methods. Natural methods we have to discuss in the next previous video. Roots, stems, leaves, these natural things is used. Today we are going to start our artificial methods of vegetative propagation. When we use artificial methods to grow plants, then it is termed as artificial vegetative propagation. ओके यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन है व्हाट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ इट? व्हेन वी यूज आर्टिफिशियल मेथड्स टू ग्रो प्लांट्स, then it is a terms as artificial propagation. Okay, in this cutting, layering, grafting, these are the methods. First, cutting. Many plants like rose, croton, money plant, sugarcane, etc. can give rise to new plants through their stem cutting. In this method, cutting of stem is placed in moist soil. After some time, the stem cutting will develop roots and grow into a new plants. आपने stem cut करके लगाया होगा कहीं पे, तो आपको दिखाऊंगा कि उसमें से प्लांट, न्यू प्लांट्स, स्टेम जहाँ पे भी बर्ड्स होते हैं वहाँ से लीफ बाहर आते हैं और वो न्यू प्लांट वहाँ पे बन जाता है. लेयरिंग. In this method, a young branch of plant is bent down and covered with moist soil, leaving the grow tip above the soil, and a ring of bark is removed from the stems before it is bent down. In a few weeks' time, when enough roots have developed on the underground portions above the ring part, it is cut off from the parent plants and grown separately as an independent plant. For example, jasmine, grapevine, bougainvilleas, etc. लुक लेयरिंग. देखो आपने क्या किया है, जैसे कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं ना, तो उनकी जैसे जास्मीन है तो उसकी जो ब्रांच ली जाती है और उसमें सॉइल के अंदर उसको बेंड किया जाता है और उसको अच्छे से सॉइल के अंदर डाला जाता है. तो उसको क्या होता है, और जो हमने ब्रांच डाली है वहीं पे अच्छे से उसको मिट्टी से ढक देते हैं और आफ्टर सम डे, अ फ्यू वीक्स, क्या होता है कि उसको रूट्स निकल आते हैं. जो स्टेम हमने अंदर दबाई है सॉइल के अंदर, उसमें से रूट्स बाहर आते हैं. तो उसकी वजह से फिर अच्छे से रूट्स आ गए, उसको लीव अच्छे से दिखने लगे, तो हम उसको पेरेंट्स प्लांट से कट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. ओके, तो जास्मीन वगैरह जो ट्रीज प्लांट्स होती है उससे हम लेयरिंग कर सकते हैं.
Grafting is very common methods of artificial propagation of and has been found extremely useful in propagation, improve variety of various flowers and fruits like rose, bougainville and mango, एप्पल एक्सेट्रा. मीन्स आपने देखा होगा रोज़, मेनी टाइप्स ऑफ रोज़ है, एक ही झाड़ पे बहुत सारे रोज़ कलर्स हम लगा सकते हैं ग्राफ्टिंग की वजह से. ओके, तो ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है? इन दिस प्रोसेस अ स्मॉल ब्रांच इज इंसर्टेड इनटू rooted plants. The rooted plants called the stalk and should be resistant to disease and strong. In this stalk, a stem cutting from the desired plant is inserted, which is known as scion or graft. When grafted, end of stalk and scion fit well and with each other, they are bound firmly until their tissues unit and become one. यहाँ पे देखो, एक ब्रांचेस को कट करना है, टी शेप में कट करते हैं और उसको हमको जो भी डिज़ायर वाला हमको चाहिए कि ये रूट, ये फ्लावर, कलर वाला फ्लावर हमको रोज़ लगाना है, तो उसकी ब्रांचेस लेके उसमें लगाया जाता है. एक जो मेन रूटेड प्लांट होता है, इट इज़ कॉल्ड द स्टॉक, एंड जो हम यूज़ करते, दूसरा प्लांट यूज़ करते हैं एज अ ग्राफ्टिंग के लिए, इट इज़ कॉल्ड अ सायन. ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. व्हाट इज द एडवांटेजेस? इट इज़ रैपिड मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं. नर्सरी में आप अगर देखने जाते हो तो आपको दिस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मेथड आपको दिखेंगे कि लेयरिंग करते हैं और ग्राफ्टिंग करते हैं. द न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स एंड डिजायर वैरायटी कैन thus be preserved for a future use. Improve the variety of ornamental plants and fruits tree can be multiplied easily. हम वैरायटी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे कि जो बेर का होता है वो उस पर भी ग्राफ्टिंग की जाती है. आपने देखा हो एप्पल बेर, ये सब हम बेर मार्केट में देखते हैं. तो ये सब इसकी वजह से हुआ है, वैरायटी ग्राफ्टिंग की वजह से हम अलग अलग वैरायटी उसको देख सकते हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशंस इज अ क्विकर, easier and less expensive method of multiplying plants. Plants which do not produce seed can be propagated by these methods. Means for example bananas है, क्योंकि उसको सीड नहीं होती तो उसका प्लांटेशन करना इससे ईजी जाता है. ओके, जैसे कि ऑरेंज है, तो ऑरेंज के प्लांट्स भी ग्राफ्टिंग के थ्रू यूज़ की जाती है मेथड्स. डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस प्लांट्स. सम क्वेश्चन इज हियर इन टेस्ट योर नॉलेज. तो फर्स्ट है, व्हाट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो ओके, तो लास्ट पेज पे अच्छे से है, बट यहीं पे भी है कि when we use artificial methods for growing plant, this term is called artificial vegetative propagation. Name the various methods of artificial vegetative propagation with example. Okay, तो आप यहाँ पे examples, फर्स्ट लेयरिंग, फर्स्ट कटिंग है, कटिंग डेवलप कर सकते हैं. रोज़ है, क्रोटॉन है, मनी प्लांट है, दिस टाइप ऑफ बोगनवेल्स है. तो दिस इन दिस प्लांट वी यूज़ कटिंग. सेकेंड लेयरिंग, लेयरिंग इज यूज इन जास्मिन. देन ग्राफ्टिंग is used in rose, mango, apple. These are the examples and methods of artificial vegetative propagation. State the advantages of disadvantages of vegetative propagation. तो पेज नंबर 135 there is disadvantages.
These methods result in overcrowding and competition for the space. New varieties cannot be produced by this method, means new varieties नहीं होती. Then disease typical of species are rapidly transmitted, means जो disease पहले plant को हो वही transfer होता है दूसरे plants में भी. Okay, these are the test your knowledge questions and answers. Sexual reproduction, the process of producing young ones of their own kind, is called reproduction. Flowering plants reproduce sexually. In plants, sexual reproduction takes place by the most attractive part, the flower. इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट से सीड बनती है. मीन्स मेन अट्रैक्टिव पार्ट्स विच इज़ द पार्ट इज फ्लावर, उससे ही पोलिनेशन होता है. एजेंट अट्रैक्ट होके पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल reproductive cell present in the flower. Thus, flower is the reproductive parts of the plants. This fusion is known as fertilization and it result in the production of zygote, means the first cell of a new organism. Okay, so in the 6th standard also we study the structure of flowers. यहाँ पे जो structure दिख रहे हैं anther or filaments, it is called the stamen. Okay, this is the male part होते हैं. Which is the part? Male part होते हैं anther and filaments of a flower. Then here is a pistil. तो इसमें stigma, style, ovaries, ovule and sepal. Okay, तो stigma, style and ovary, this is the, it is called the carpel also या pistil बोलते हैं. This is the female part of a plant, flower. Then endosperm and nucleus, means zygote जो बनता है after the fertilization of a fusion of a male and female gametes, और जो बनता है वो zygote बनता है. This is the ovary. ovary में पूरा होता है. endosperm seed coat and ambrose and ये seed बनता है. Okay, तो seedling, और seed से क्या बनेगा? seedling. Okay, तो दिस इज, और ये कैसे होता है यहाँ पे हमने देखा कि रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट इन द सेल, और ये सेल होती है यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं स्टिक टू द स्टिग्मा, और वो पास होता है स्टाइल से ओवरी तक, और वहाँ पे यहाँ पे और जो पोलन ग्रेन बनता है वो एंथर में बनता है. ओके, तो ये सब प्रोसेस होती है और जिससे ज़ायगोट बनता है, और ज़ायगोट से क्या होती है? तो फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू, और ये ओव्यूल्स रहते हैं. ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स. इन sexual reproduction in plant, flower is the main part. That part of flower, we study the part of flower here. Typical flower consists of 4 hoods, bone or thalamus or stalk. These hoods from outside to inside are. सम हॉर्स हैं तो 4 हॉर्स हैं, तो उसमें 4 जो 2 रहते हैं वो एज अ एसेसरी यूज होते हैं, और 2 फॉर द रिप्रोडक्शन के लिए. तो कैलिक्स मीन्स इट इज कॉल्ड ऑल्सो सेपल एंड कोरोला कंसिस्ट ऑफ पेटल्स. दीज आर द एसेसरी हॉर्स, एंड एंड्रोजियम्स एंड गाइनोजियम्स और द पिस्टिल, दीज आर द reproductive hoods. Androgyms consist of stamen, means जो females reproductive parts हैं, sorry, androgyms is a male productive parts हैं, and gynozyms or the pistil is female reproductive parts of flower. The stamen
and the pistil are the reproductive parts of flower. Look this diagram. A stamen has an anther which is supported by a long stalk called the filaments. Stamen, anther and filament, these are the part. It is called the stamen और ये मेल पार्ट है. The anther contains pollen sac that produce pollen grains. और pollen grains कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? Anther contain the pollen sac रहती है, वहाँ पे pollen grains बनते हैं जो कि येलोइश, हम जब हम फ्लावर को तोड़ते हैं तो हमारे हाथ को लगते हैं येलोइश, येलो कलर के रहते हैं और थोड़े ग्रेन जैसे रहते हैं. Pollens are the male reproductive unit of the flower. Pistil is the female reproductive part of flower. Each pistil consists of swollen stigma. उसमें एक स्टिग्मा रहता है at the top, a long tube called the style, and the swollen ovary at the bottom. Bottom में रहती है ovary. तो कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स. स्टिग्मा, स्टाइलन, stigma, style and ovary. Okay, तो at the bottom. Some flowers are bisexual flowers. That means they contain both the stamen and the pistil. They are also known as hermaphrodites or complete flower. For example, mustard and rose. Some are unisexual flower. That means they have either the stamen or the pistil. For example, cucumber, maize and watermelon. First, यहाँ पे बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें दोनों भी रहते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट रहते हैं. इट इज कॉल्ड hermaphrodites, मीन्स कंप्लीट फ्लावर. उसमें जैसे कि स्टेमन भी रहता है. फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस का जो फ्लावर हम देखते हैं तो उसमें क्या रहता है? दोनों भी पार्ट्स आपको दिखेंगे. नेक्स्ट आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. दैट मीन्स दे हैव आइदर द स्टैमेन और द पिस्टिल. एक ही पार्ट्स रहता है, जैसे वो मेल रहते हैं या तो फीमेल पार्ट्स में रहते हैं, जैसे कि कुकुम्बर हैं, वाटरमेलन है. दीज आर द. नेक्स्ट पॉइंट, pollination. The transfer of pollen grains from one flower to another is called pollination. Pollen grains transfer from one flower to another by the pollinating agents. Means agent use होते हैं, जैसे wind है, animal है, insect है. ओके, इनके थ्रू पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं वन फ्लावर टू अनदर. या तो विंड से एक ही फ्लावर्स पे जो पोलन ग्रेन्स है स्टिग्मा पे जाके स्टिक होते हैं, और वही सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. द टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अनदर फ्लावर ऑफ द सेम टाइप्स is known as cross pollination. The transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower or to the stigma of another flower on the same plant is termed self pollination. First, यहाँ पे दो डायग्राम है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. तो सेल्फ पोलिनेशन मीन्स जो फ्लावर है उसके ही स्टिग्मा पोलन ग्रेन निकलते हैं और उसके ही स्टिग्मा पे अगर स्टिक होते हैं तो सेल्फ पोलिनेशन. और अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो इट इज कॉल्ड द क्रॉस पोलिनेशन.
Okay, and here the diagram of stamen, एंथर है एंड फिलामेंट्स है. एंथर जब बर्स्ट होता है, ओपन होता है, उसमें से क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन्स निकलते हैं. ओके, एंड देयर आर सम फ्लावर बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल होते हैं. तो बायसेक्सुअल मीन्स they contain the both the stamen and the pistil, means मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, तो इट इज ए बायसेक्सुअल. एग्जाम्पल्स है उसके मस्टर एंड रोज. सेकेंड है यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हैबिस्कस भी है जो फ्लावर हम देखते हैं हमेशा. देन यूनिसेक्सुअल में आता है कि आइदर स्टैमेन होता है या पिस्टल होते हैं, मीन्स मेल पार्ट हो सकता है या तो फीमेल पार्ट. तो फॉर एग्जाम्पल है कुकुम्बर, वाटरमेलन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट था पोलिनेशन. व्हाट इज मीन बाय पोलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट कॉल्ड pollination. And there are two types of pollination: cross pollination, self pollination. So cross pollination means transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower. Yeah, another plant to the same types means एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स पे भी हो गया तो भी क्रॉस पोलिनेशन है. एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स पे हो गया तो भी क्रॉस पोलिनेशन है. और सेल्फ पोलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर्स और टू द स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ. नेक्स्ट पॉइंट इज एजेंट ऑफ पोलिनेशन. तो एजेंट ऑफ पोलिनेशन क्या है? विंड, इंसेक्ट, वाटर के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स है वो कैरी आउट होता है. इट इज कॉल्ड द एजेंट ऑफ पोलिनेशन. पोलिनेशन बाय विंड ऑकर इन फ्लावर विच हैव स्मॉल पेटल्स विदाउट कलर्स, नेक्टर एंड एसेंट. दे प्रोड्यूस द large number of pollen grains which are carried with wind to stigma of another flower, and the pollen grains of each flowers are small, light and sometimes provide with wings, thus are easily blown away with wind. For example, wheat, grass and some plants on wind pollination. Okay, तो जो विंड के थ्रू होता है ऑब्वियसली वो लाइट होगा पोलन ग्रेन्स, और जिनको कलर्स नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट नहीं होते, वो विदाउट कलर्स रहते हैं, नेक्टर्स नहीं रहता उनमें. तो इन दैट टाइप्स ऑफ जो फ्लावर्स रहते हैं उनका थ्रू द विंड होता है. जो एजेंट होती है पोलिनेशन वो विंड होता है. और क्यों हो सकता है विंड ही? क्योंकि वो स्मॉल रहते हैं, पोलन ग्रेन्स उसके बहुत स्मॉल लाइट रहते हैं, और किसी किसी को विंग्स रहते हैं. जैसे कि आप जो बुड्ढे के बाल जो जैसे अपन बोलते हैं छोटे बच्चे, तो वो भी एक सीड, उसको विंग्स रहता है कि एक सीड उड़ के जाती है और कहीं प्लांट होती है. एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रास के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, एंड इनके पोलिनेशन जो होता है वो विंड के थ्रू होता है. सेकेंड है इंसेक्ट. पोलिनेशन बाय इंसेक्ट टेक प्लेस इन फ्लावर दैट आर यूजुअली लार्ज, कलर विथ शोई टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, मीन्स उसके कलरफुल्स रहते हैं, फ्लावर्स बहुत कलरफुल रहते हैं. सम ऑफ दिस फ्लावर सीक्रेट नेक्टर, मीन्स उसमें स्वीटनेस रहता है नेक्टर में, तो उसके वजह से क्या होते हैं, जैसे हनी बीज है वो अट्रैक्ट होती हैं वन फ्लावर मीन्स, और वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पोलन ग्रेन को कैरी करती है. टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, व्हेन एन इंसेक्ट विजिट अ सच फ्लावर द पोलन ग्रेन स्टिक टू इट्स बॉडी and these pollen grains get rubbed off when the insect goes to another flower
फॉर कलेक्टिंग नेक्टर्स। मीन एक नेक्टर्स कलेक्ट हो गया, वो दूसरे फ्लावर पे जाती है नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, तो क्या होता है ऑब्वियसली उसके जो पैर को पोलेंस ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते। एंड saliva flowers show a special adaptation for pollination by bees. Sweet peas and orchid are plant pollinated by insect. और some examples है कि स्वीट पीज जो रहते हैं उसका ऑर्चिड का जो पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। ओके, तो क्या हो गया, फर्स्ट विंड से क्यों हो सकता है, क्योंकि वो जो पोलेंस ग्रेन्स रहते हैं वो स्मॉल रहते हैं, लाइट रहते हैं, और किसी किसी को विंग्स भी होते हैं कि उसके थ्रू वो विंड के उस थ्रू उड़ सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। दूसरा है कि इंसेक्ट के थ्रू भी होता है पोलिनेशन। तो फ्लावर्स कैसे रहते हैं, उसमें अट्रैक्टिव फ्लावर्स रहते हैं कि जिसकी वजह से कोई कोई इसको नेक्टर रहता है कि जो स्वीट लिक्विड रहता है, और उसको नेक्टर को खाने के लिए इंसेक्ट आते हैं, और इंसेक्ट वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर जाते हैं या दूसरे प्लांट पे भी जाते हैं। ओके, तो क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन भी होता है। ओके, यस, दिस इज 2 फ्लावर्स हैं और पोलन ग्रेन्स है कि जहाँ पे आपको दिख रहे हैं पोलन ग्रेन्स, हनीज बीज वहाँ पे पोलन ग्रेन्स के पास है। ओके, पोलन फ्रॉम द स्टेमन स्टिक टू द बी एज इट विजिट फ्लावर टू कलेक्ट द फूड। देखो वो नेक्टर खा रही है, वहाँ का लिक्विड है, वो जब वो लेती है तो क्या होता है उसके जो फीट को क्या लग रहा है, पोलेंस लग जाते हैं। एंड द बी ट्रैवल टू अनदर प्लांट ऑफ अ सेम टाइप्स। जो पोलन ऑन द लेग्स स्टिक टू द पिस्टिल ऑफ अ फ्लावर ऑन द अदर प्लांट्स। और दूसरे डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि जो पोलेंस है उसके पैर को जो स्टिक हुए हैं वो दूसरे फ्लावर के पिस्टिल पे लग जाते हैं, और उससे क्या होता है, पोलिनेशन होता है। ओके, तो लाइक दिस जो इंसेक्ट का पोलिनेशन होती है इंसेक्ट के थ्रू वन फ्लावर टू अनदर या क्रॉस पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट आता है कि वाटर, वाटर के थ्रू भी पोलिनेशन एजेंट है। द एक्वेटिक प्लांट पोलिनेशन टेक प्लेस बाय द वाटर। Pollen grains are produced in large number and they float on the surface of the water till they land on the stigma of female flower. For example है हेड्रिला, है ना, यहाँ पे जो पोलिनेशन होती है और वाटर के थ्रू पोलिनेशन, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, वाटर सरफेस पे, और लैंड पे उसको अब जहाँ पे लैंड मिल जाती है वहाँ पे उसका पोलिनेशन प्लांटेशन होता है। आपने देखा होगा कि जो कोकोनट की जो ट्रीज होती है पूरे कोस्टल एरिया पे रहती है, तो वो प्लांटेशन भी ऐसे होता है, उसकी जो सीड होती है वाटर के थ्रू लग जाती है, और जब कोस्टल जो एरियाज होती है वहाँ पे मिट्टी में सॉइल में प्लांटेशन होता है। ओके, दिस इज विच इज एजेंट इज यूज विंड, इंसेक्ट एंड वाटर।